हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से मेरा चैनल पे सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज. Some of you must be knowing that this is a topic taken from the chapter training methods and from the syllabus ISC class 12 physical education. The students, those who have taken physical education as a subject, the videos what I'm making further will be very helpful for your board examination as per my video. So therefore I would request, if you are already in my channel, keep following it and get updated with all the videos what I'm making further. And if you are not in my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you get notified with the videos what I'm making further. And if you like, share and comment in the for my videos, so that will be very encouraging for me. In this regard, I must say that I am preparing a course material that will be published soon. That course material will be containing the questions and answers from your section A of your syllabus as well as the section B of your syllabus. And along with that, I'm giving the video links what I'm making in the YouTube with the topics mentioned on the top, so you do not need to fumble around to the entire channel. Just click on the desired video link and watch the video. So anyway, let's move forward with the topic today. Isometric and isotonic exercise. Okay, we do exercises in different manner, but the nature of exercises defines that what kind of exercises are these. Anyway, let's move forward with the detailed understanding. What we'll be understanding in this particular lesson: the concept of isometric exercises, advantages of isometric exercises, the concept of isotonic exercises, advantages of isotonic exercises. Okay, these are the things we will be discussing in this video. Anyway, let's move forward. First of all, let us discuss with the isometric exercises. The isometric exercises क्या होता है? Isometric exercises are a type of static strength training where the muscles generate force, but its length does not visibly change, and the joint angle remains constant. All the words written in this particular sentence are very important. Here you can see that इसमें बोला गया कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो एक स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेयर मसल्स जनरेट फोर्स, मतलब वहाँ पे मसल्स फोर्स जनरेट करेंगे, बट इट्स लेंथ डज नॉट विजिबली चेंज, मतलब इसका जो लेंथ है ये चेंज नहीं होगा, मतलब विजिबली चेंज नहीं होगा. एंड द जॉइंट एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जिस एंगल में हम लोग एक्सरसाइज में कांस्टेंट रहेंगे वो चेंज नहीं होगा. If you look into this picture, then it will be very clear that the lady is doing a plank and the angle of her elbow is not changing. Isometry comes from the Greek word iso, equal, and metron means measure or length. So this is the Greek meaning of it. Now let us understand in a very precise manner. Unlike dynamic exercises, unlike squats and push-ups, we do squats and push-up, right? So here you do not need to do any kind of movement. You hold a position rather than move through a range of motion. मतलब a position where you are what you are positioning yourself, वो पोजीशन तुमको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो, जो लेडी प्लैंक कर रहा है, देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन में वो होल्ड कर रही है, तो इसके हिसाब से वहाँ पे मसल में टेंशन है, मसल लेंथ नहीं मूव चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका फोर्स जनरेट हो रहा है. इसके हिसाब से इसका एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब कोर मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, शोल्डर मसल, बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो है, चेस्ट मसल ऑल्सो. अच्छा, उसका इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ये नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता है,
उसके बाद स्टैटिक इन नेचर, मतलब नेचर इसका मूवमेंट नहीं होता है इसलिए स्टैटिक बोला गया है। हाई फोर्स वर्कआउट, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन इसका आउटपुट मतलब फोर्स आउटपुट ज़्यादा है। अच्छा, स्पेसिफिसिटी क्या है, ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसका एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, इम्प्रूव्स मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस है, मतलब जो एक्सरसाइज ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर पढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से मसल का स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बढ़ता है। उसके बाद क्या है? जॉइंट फ्रेंडली एंड लो इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे जो बोला गया पहले कि स्टैटिक एक्सरसाइजेस है, तो वो जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, मतलब प्रेशर इन द सेंस मतलब मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। और लो इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट कम होता है। नेक्स्ट क्या है? एनहेंसेस पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड कोर कंट्रोल, मतलब हम लोगों का जो कोर मसल्स है, मतलब एब्डोमिनल मसल्स जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है, उसके मसल्स कंट्रोल में रहता है और पोस्चरल स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद क्या है? टाइम एफिशिएंट, मतलब ये बहुत टाइम एफिशिएंसी के हिसाब से किया जा सकता है। उसके बाद बूस्ट माइंड मसल कनेक्शन, मतलब ये एक्चुअली बोल रहा है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब हम लोग जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसके हिसाब से हम लोग का माइंड और मसल्स का कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद के रिक्वायर्स मिनिमल और नो इक्विपमेंट, इसमें इक्विपमेंट कम लगता है और कभी कभी बिना इक्विपमेंट के हिसाब से भी ये किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? सपोर्ट्स रिहेबिलिटेशन एंड इंजरी प्रिवेंशन, मतलब जो एथलीट्स को कभी कभी इंजरी हो जाता है, इंजरी के बाद जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद बोला जाता है कि इसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में आना है, मतलब जो स्ट्रेंथ ये वो जगह में खोआ खोआ जाता है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये सब एक्सरसाइज किया जाता है। जैसे जो स्ट्रेंथ डेवलप पहले था वो खो गई थी, तो वो फिर वापस आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसके बाद आ गया हम लोग आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आर डायनामिक मूवमेंट। आइसोमेट्रिक जहाँ पे था वहाँ पे हम लोग बोला कि स्टैटिक मूवमेंट, यहाँ पे बोला कि डायनेमिक मूवमेंट, वेयर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आइदर शॉर्टेंस, मतलब कॉन्सेंट्रिक और लेंगदेंस, मतलब क्या बोलता है कि मसल्स आइदर शॉर्ट होगा और ये बढ़ेगा। मतलब हम एक्सरसाइज दे रहा हूँ, देखो हम लोग जब ये करते हैं, देखो ये अब मसल्स शॉर्टन हो रहा है, और जब हम इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ये लेंथ बढ़ जाता है। तो वाइल मूविंग अ जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब जब ये एक्सरसाइज करेगा फुल रेंज ऑफ मोशन में, तो कभी कभी मसल शॉर्टन हो जाता है और कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, मतलब डायनामिक मूवमेंट का यही तरीका होता है। द टर्म आइसोटोनिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक आइसो इक्वल एंड टोन्स टेंशन, मतलब टेंशन जो है मसल का टेंशन नहीं कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वही एक स्टैटिक जगह में रहेंगे, लेकिन इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, मीनिंग द मसल्स मेंटेन्स रिलेटिवली कंसिस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द मूवमेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज हम लोग भी कुछ कुछ पता ही है कि कौन कौन एक्सरसाइज इसमें अंदर पड़ते हैं। स्क्वाट्स, तो ये लेग्स और ग्लूट्स का पुशअप हो सकता है, लंजेस हो सकता है, बाइसेप्स कर्ल हो सकता है, बेंच प्रेस हो सकता है, और डेडलिफ्ट्स भी हो सकता है। तो ये सब जैसा कुछ एग्जांपल हम दिए हैं इसमें, तो इससे इसी हिसाब से जैसा जो जो एग्जाम एक्सरसाइजेस है वो सब इस आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कभी कभी शॉर्टन हो जाता है। एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसका कभी कभी छोटा भी बढ़ जाता है कि कभी कभी। अच्छा, इन्वॉल्व जॉइंट मूवमेंट, मतलब यहाँ पे जॉइंट मूवमेंट होगा ऐसे ऐसे। तो उसके बाद अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ एंड साइज, मतलब मसल्स का जो स्ट्रेंथ एंड साइज अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे। जैसे पुशअप और स्क्वाट करने से हम लोग को देखते हैं कि हम लोग का बाइसेप्स और ये चेस्ट मसल्स थोड़ा बढ़ जाता है।
अच्छा, इम्प्रूव्स जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, मतलब जब जॉइंट मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। और बूस्ट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जब कोई डायनामिक एक्सरसाइज होगा, डायनामिक एक्सरसाइज होने के साथ तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब लंग्स एज वेल एज हार्ट फंक्शनलिटी अच्छे तरीके से चलेगा। उसके बाद क्या है, एनहांसेस फंक्शनल फिटनेस, मतलब हम लोग का फंक्शनल फिटनेस जो है मूवमेंट, लिफ्टिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन एंड परफॉर्मेंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ पे जो 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 चीज़ हम लोग को लगता है फिटनेस, फिटनेस के हिसाब से जो लगता है वो अच्छे तरीके से बढ़ेगा। सपोर्ट्स बोन डेंसिटी, हम लोगों का जब ये एक्सरसाइज होगा तो जो बोन का जो डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा, तो मतलब इसका बोन का भी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। मतलब जब ये एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, हम लोग उसके बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्टिक जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसके हिसाब से बोन का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। अच्छा, प्रोमोट्स बेटर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे ये एक्सरसाइज करने से तुम्हारा बैलेंस भी अच्छा तरीके से बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी भी अच्छा तरीके से बढ़ेगा। वर्सेटाइल एंड स्केलेबल, they can be adapted for all fitness level, from body weight basics to advanced resistance training with equipment। मतलब नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से भी तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब जैसे पुशअप, पुशअप करने से कोई इक्विपमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से तुम मूवमेंट कर रहे हो। तो उसके बाद तुम कोई डंबल, बारबेल और कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट जो जिम में मिलता है उसके हिसाब से भी किया जा सकता है। सो ये हो गया तुम्हारा आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो हम तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाया था। तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इफ इट इज सो, देन आई वुड रिक्वेस्ट टू लाइक and share with your friends, and if you write in the comment box, that will be very very encouraging for me. And if you are already in my channel, please keep on following my channel so that you get updated with all the videos what I'm making further. And if you are not in my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you get notified with all the videos. Thank you so much.